ਯੈਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਬਦਬੂ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੱਚ, ਸਮੈਲ, ਫੀਲਿੰਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ? ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਰ ਦਾ ਪਾਵਰਸ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਟੂ ਵਿਚ ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਯਾਦ ਹੈ? ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ। ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਬੱਚਿਓ, ਆ ਦੇਖੋ MKS। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ M ਤੋਂ ਮੀਟਰ, K ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜੈਸਮੀਨ, K ਤੋਂ किलोमीटर, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। S ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ? ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਵਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੂਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਕੈਂਡਲਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੋਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਨੇ to which units of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity, ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ। ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ? ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ, ਬੋਲੋ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਨਟੂ, ਬੋਲੋ, ਹਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। एच, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਔਰ ਹਾਈਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਨੇ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ, ਮੀਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਥ L ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ L ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲਿਊਮਸ ਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਵੋਲਿਊਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਉਹਦੀਆਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਜ਼ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇਨ ਲੈਂਥ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਏਰੀਆ, then ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ? 2 in
लेंथ, है ना, क्योंकि एरिया कितना बनेगा, एक लेंथ लोगे फिर दूजी लेंथ लोगे ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਬੋਲੋ ਜੈਸਮੀਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, area, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਲੈਂਥ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ 1 डायमेंशनल, राइट। सो आप कह सकते हैं कि जी लेंथ था दैट इज हैविंग 1 डायमेंशन, बट एरिया इज हैविंग 2 डायमेंशन इन लेंथ, वॉल्यूम इज हैविंग 3 डायमेंशन इन लेंथ। सो इदा होर भी ਅਸੀਂ डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी की गल करते हैं, राइट। सो वेलोसिटी दी डायमेंशंस, वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर बाय, बोलो बच्चों, मीटर बाय सेकंड, राइट। सो मीटर दी ਅਸੀਂ L ਲਵਾਂਗੇ, स्क्वायर ब्रैकेट्स ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ और डिवाइडेड बाय S, ਇਹ ਕੀ ਆ टाइम, टाइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ T, राइट। सो एक ही हो गया, दिस इज इक्वल टू बेसिक ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ M L T। M तो मतलब मास, सॉरी M तो मतलब बोलो बच्चों, मास ही है, मास वो ਅਸੀਂ kg ਚ ਲਵਾਂਗੇ, L ਤੋਂ ਲੈਂਥ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਚ ਲਵਾਂਗੇ, T टाइम सेकंड्स लवांगे, ठीक है, ओके दैट्स फाइन। सो ये हो गया MLT। सो ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏ यूनिट्स, M कितना हो गया, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, M ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਗਈ 0, L ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਗਈ, बोलो L ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਤੇ T ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਤੇ T ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। सो इट विल बी M L T minus 1, M0 सॉरी M0 L T minus 1, ठीक है, वेलोसिटी ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੈਸਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, M L T ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵੇਟ, यस यस सुषमा, सी दिस स्लाइड, L, हाँ एक मिनट। सो दिस इज MKS, यू नो मैंने भी थोड़ी कन्फ्यूजन आई सी इतने कि शायद अपन गलत डिस्कस कर गए, बट MKS सिस्टम यही है। MKS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, MKS मतलब M for you know MKS, you know, so this is like ਆਪਾਂ M ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਲੈਨੇ ਆ, K ਤੋਂ किलोग्राम, S ਤੋਂ सेकंड, MKS, ठीक है, इज इट राइट। सो अगे चलते हैं, यस एक्सेलरेशन दे जैस्मिन की यूनिट्स होंगे, एक्सेलरेशन होंगी की है मीटर पर सेकंड, ये तो वेलोसिटी है ना, ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ एक्सेलरेशन आएगी, याद करो एक्सेलरेशन A is equal to फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। ਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਆਣਗੇ, मीटर बाय सेकंड, ए वेलोसिटी द यूनिट डिवाइडेड बाय सेकंड, सो एक्सेलरेशन द यूनिट्स की होंगे मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, राइट। सो ये आ जाएगा मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। सो ये देखिए फिर यूनिट्स होंगे यस्मीन, L, L T M minus 2, बिल्कुल ठीक ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, क्योंकि M ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ M ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, L है, L ਦੀ ਪਾਵਰ 1 है, T minus 2, वेरी हैप्पी। इदां ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ। I'll be happy ਜੈਸਮੀਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, force upon area, बिल्कुल ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ से बहुत अच्छी है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ फोर्स ਦੀ डिस्कस करांगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो फोर्स इज इक्वल टू
मास इनटू बोलो एक्सेलरेशन सेकंड लॉ तो एरिया इज एरिया की होएगा मीटर स्क्वायर लेंथ इनटू लेंथ सो मास द यूनिट की आएंगे मास इज केजी इनटू एक्सेलरेशन द यूनिट्स बोलो शाबाश मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है ना एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय किया गया मीटर स्क्वायर आ देखो एरिया बस ਆਪਾਂ एक्सपोनेंट्स ਦੇ लॉस ਲਾਣੇ ਨੇ x raised to power y divided by x raised to power z is equal to x raised to power y minus z याद है ना x raised to power m into x raised to power n is equal to बोलो x raised to power anyone M plus n. m plus n वेरी गुड तो जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ let's say x raised to power m divided by z raised to power m ਹੁਣ ਬੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਬਟ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਨੇ तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ x by z whole raised to power m ਸੋ ਬਸ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹੀ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ इनटू मीटर डिवाइडेड बाय आ मीटर स्क्वायर ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਿਵਾਈडेड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर सीधा ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ फॉर m मास m ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ l -1 t ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਟਾਈਮ t -2 am I right m l -1 t -2 ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ m ਆ ਇਹਦੀ ਆ 1 l ਦੀ -1 ਟਾਈਮ ਦੀ -2 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ rho is equal to mass divided by volume so yes Jasmine ਦੱਸੋਗੇ mass ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 0 kilogram वॉल्यूम इसे कितना कहोगे मीटर meter क्यूब आएगा ना नीचे वॉल्यूम है ना हाँ देखो जी हाँ जी सर पता है क्या वॉल्यूम इज मीटर लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट एक ही आ जाएगा फिर यूनिट्स किलोग्राम m m1 ठीक है तो लेंथ का क्या आएगा 3 ऊपर जाके 3 ऊपर जाके की हो जाएगी 3 negative -3 और टाइम का क्या आएगा टाइम का 0 यदि फिर इंडिसेस की आएगी यदि पावर की आएगी 0 0 0 और ठीक आ गया ठीक है और ऐसे डिस्कस करते हैं ओके और ऐसे गल करते हैं लीनियर मोमेंटम सो लीनियर मोमेंटम की हुंदा दसो लीनियर मोमेंटम को ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट करते हैं p ਦੇ ਨਾਲ is equal to Mass into velocity. into velocity ठीक है मास की यूनिट की होए किलोग्राम वेलोसिटी दे मीटर पर सेकंड सो ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ m l t -1 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਕਿੰਗਮ ਪਾਈ ਥਿਓਰਮ ਜਾਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋਮੋਜੀਨਿਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੱਢਣੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ठीक है जिदा साइंटिस्ट लोग फॉर्मूलेस करते हैं बट वो एक्सपेरिमेंट करते हैं आप थ्योरेटिकली करेंगे राइट ओके हुन बच्चों दसो व्हाट अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ स्पेसिफिक ग्रेविटी की ਹੁੰਦੀ याद है डेंसिटी किसी भी बॉडी दी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड यू नो 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों कहते हैं क्योंकि हैरानगी की गल है स्टूडेंट्स ਜਦੋਂ भी कोई भी सॉलिड ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੀਟ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੋਲਿਡ
टू लिक्विड चेंज होएगा, राइट। सो मान लो कि जिस तरह ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੱਸੋ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, सॉलिड टू लिक्विड जो कोई भी चीज़ जाती है तो वो डेंसिटी, ये तो आइस की गल कर रहे हैं ना कि 0 डिग्री से आइस होंगी है, टैंपरेचर इंक्रीज करांगे तो मैल्ट हो जाएगी। पर जो आप आयरन लीए, आयरन जो तुम मैल्ट करना हो तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टैंपरेचर करना पेगा। इस तो बाद जिदा ही टैंपरेचर बढ़ेगा सॉलिड लिक्विड कन्वर्ट होएगा तो डेंसिटी की होएगी जो भी सॉलिड लिक्विड कन्वर्ट करता वा, दसो बच्चों डेंसिटी घटती है कि बढ़ती है? डिक्रीज। वेरी राइट, डेंसिटी डिक्रीज करती है। इदा ही इस करके जी गैसेस की डेंसिटी आ सब तो ज़्यादा घट होंगे ने, उस तो ज़्यादा लिक्विड्स की, उस तो ज़्यादा सॉलिड्स की। सो वाटर की डेंसिटी हैरानगी की गल है, जो भी किसी सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करोगे डेंसिटी डिक्रीज होएगी। बट हैरानगी की गल है जो वाटर आ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो तुसी मेल्ट करते हो पानी नूं तो ਉਹਦੀ डेंसिटी डिक्रीज करने की बजाय इनक्रीज करती है। और स्टूडेंट्स देखो फिजिक्स हैरानगी की गल, इसे पानी के खास नेचर के कारण जिन्ने भी एक्वेटिक एनिमल्स ने, जिन्ने भी एक्वेटिक एनिमल्स आ वो मरते नहीं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। रीजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के उत्ते डेंसिटी जी घट होएगी। सो जी बर्फ आ ऊपर ऊपर आ जाएगी, बर्फ की डेंसिटी घट होएगी। बर्फ एक ब्लैंकेट के वांगू जी अंदर इक्वेटिक जीव्स ने वो जिन्ना भी उन्होंने मैटाबॉलिज्म के कारण हीट आएगी उस हीट को बाहर नहीं जान देगी। सो उत्थे इन्ना टैंपरेचर आ जाएगा ये जी आइस आ क्योंकि डेंसिटी घट होगी 0 ते आ तकरीबन लेट्स से 4 डिग्री है डेंसिटी ज़्यादा होएगी, यू नो डेंसिटी ज़्यादा वाली चीज़ थले होंगी है, बर्फ ऊपर आ जाती है। तो ये बर्फ एज ए ब्लैंकेट ये सारी हीट को ठंड को अंदर भी नहीं जान देगी, पोलर रीजन के उत्ते हीट को बाहर भी नहीं जान देगी। सी द फिजिक्स की कुदरत है। सो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी की डेंसिटी को ज़्यादा करके परमात्मा ने सारे इक्वेटिक एनिमल्स को बचा लिया। सो इस करके असी डेंसिटी पानी की 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लैंने जी कि मैक्सिमम होंगी है। इंटरस्टिंग स्टूडेंट्स। सो हुण ये डेंसिटी को डेंसिटी नाल जे डिवाइड किया तो यूनिट की आ गया, डेंसिटी का यूनिट की है m mass, density is mass by volume, ठीक है ना। इधर की यूनिट होएगा ml माइनस 3t0, ऊपर भी आएगा थल्ले भी वो आ जाएगा, अल्टीमेटली की हो जाएगा m0 l0 t0 सारे जीरो हो गए। इस करके स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इन इस करके कहते हैं इट इज डायमेंशन इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिवें कि स्ट्रेन तुसी पढ़ते हो, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यदि भी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। जी भी डायमेंशनलैस क्वांटिटीज ने पाई होर भी बहुत सारिया चीज़ा ने जो होर बहुत सारिया कॉन्सटेंट्स ने उन्होंने डायमेंशन नहीं है। सो उन्होंने सारिया की यूनिट्स की होंगे m0 l0 t0। गुड, थोड़ी होर कर दे। ओके नाउ हम तुम दसो बच्चों कि एवोगैड्रोस नंबर के यूनिट्स की होंगे। एवोगैड्रो नंबर जस्ट एक नंबर है, कोई यूनिट्स नहीं, m0 l0 t0 नाल असी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स पा देंगे, ठीक है। और दसो स्टूडेंट्स टेल मी नाउ लेट्स से आप गल करते हैं थ्रस्ट की। थ्रस्ट तुहानू पता है थ्रस्ट प्रेशर स्ट्रेस यू नो कुछ ना दे डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ने बाद डिस्कस करांगे, बट इन्हां दे यूनिट सारियां दे सेम आ। की यूनिट है इन्हां दे सेम, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वो आप डिस्कस उन्हें कर चुके हैं। जो प्रेशर की यूनिट्स आ वो यूनिट एरिया होंगे।
प्रेशर ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੋ m l बोलो जैस्मीन और ऐसे प्रेशर ਦੇ यूनिट डिस्कस ਕੀਤੇ ਆ L minus 1. यस t T minus 2. minus 2 very good okay now ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ वर्क ਦੀ वर्क is equal to force into बोलो डिस्टेंस ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਜਸਟ ਇਨਟੂ ਹੈ इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन तो फोर्स दे की यूनिट्स ने बोलो जी फोर्स दे यूनिट्स की ने मास इनटू एक्सेलरेशन m l t -2 इधर यूनिट ऑफ फोर्स दे यस जैस्मीन इश्मा डिस्टेंस द यूनिट डिस्टेंस इज ओनली l am I right so इथे की आगे फिर यूनिट्स m l बोलो m l2 t minus 2 m l2 t minus 2 तो इनको सी ठीक है नहीं है इसको जाओ ठीक है ओके सो कैन एनीवन टेल हीट दे की यूनिट्स होंगे स्टूडेंट्स हीट एनीवन heat the units with Joule. the units with joule okay fine now what about tension बच्चा ने बहुत टेंशन आ जाती है पढ़ पढ़ के टीचर भी टेंशन देते हैं होमवर्क करके टेंशन आ जाती है यस बट फिजिक्स पे विच टेंशन का की मतलब यस स्टूडेंट्स फिजिक्स पे विच टेंशन का की मतलब आ देखो एक वायर है इधरों भी पुल कर रहे हो इधरों भी पुल कर रहे हो इसी कहने हैं the wire is under बोलो the wire is under इधर भी फोर्स लग रही है इधर भी फोर्स लग रही है तो इसी की कहने हैं जैस्मिन the wire is under tension तो टेंशन की है फोर्स फोर्स की यूनिट्स की है मास इनटू एक्सेलरेशन m l बोलो m l मास देखो मास इनटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन किया मीटर बाय सेकंड स्क्वायर m l t सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके की -2. -2 बिल्कुल ठीक है सो टेंशन की यूनिट्स भी आ गए आओ कुछ और डिस्कस करिए ओके व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी ठीक है सो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फ्रीक्वेंसी f लिख लो या फ्रीक्वेंसी न्यू न्यू भी लिख लिया न्यू याद रखना n u ग्रीक लेटर न्यू तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बोलो 1 बाय टाइम Time. पीरियड टाइम पीरियड ਦੇ यूनिट्स सेकंड ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 ਬਾय सेकंड फ्रीक्वेंसी से देखिए mlt ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ यूनिट्स होंगे जैस्मिन 0. नहीं जीरो नहीं करना m0 आगे M0. l0 L. लेंथ भी नहीं है L0. टाइम और टाइम भी थल्ले है ऊपर नहीं है इस करके टी की पावर की आएगी 0. नहीं जीरो क्यों टी थल्ले है ना देखो टाइम -1. ऊपर जाएगी -1 -1. व्हाट अबाउट वेवलेंथ व्हाट इज वेवलेंथ देखो मान लो ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਸੋ ਦੋ ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ that is your wavelength क्योंकि wavelength distance ਆ lambda ਇਹਦੇ यूनिट्स ਕੀ ਹੋਣਗੇ yes anyone can tell distance ਦੇ यूनिट ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਇਹਦੇ ਫਿਰ mlt ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ m0 l t बोलो सिर्फ आ रहेगा सिर्फ मीटर रहेगा बाकी कुछ भी नहीं है सो टी दे डायमेंशंस भी की होंगे 0 ठीक है बिकॉज़ आप किसी चीज दी पावर भी 0 हो गए और कितने बराबर होती है x दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 ठीक है चाहे तो कोई x y
एक्स वाई दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 कुछ भी तक आ जाए एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाय जेड रेज़ टू पावर -27 जो भी आ जाए ये सारे दी पावर 0 हो गई इज इक्वल टू 1 ऑलवेज रिमेंबर ठीक है कुछ और कर लीजिए देन विल लीव यू ओके स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt मतलब एंगुलर वेलोसिटी rate of change of angular velocity with respect to time d omega by dt so इधर इसी की तरह कहेंगे change in angular velocity by time taken right so change in angular velocity yes बच्चों कितना लिखेंगे बोलो स्टूडेंट्स angular velocity when angular velocity the units की होंगे can you tell me angular velocity I think first we should discuss angular velocity yes students come on tell me angular velocity omega ये देखिए units में this is you can say angle divided by time angle ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ degree मिनट विच सेकंड विच यहाँ से कैलकुलेशन दे विच हमेशा रेडियन विच लवांगे डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड दे विच तो बोलो सो m दा एंगल दा कोई यूनिट नहीं साडे को एंगल दा कोई यूनिट नहीं लेना एंगल है राइट मेन चीज यूनिट के दा आ रहा टाइम दा सो दिस विल बी 1 बाय टाइम इज इक्वल टू बोलो की होएगा m0 l0 t -1 याद रखना एंगुलर वेलोसिटी यूनिट्स t -1 so this is equal to radian per second okay so angular acceleration देखो किए होंगे ओमेगा देता आ गए 1 by t 1 by t divided by dt 1 by t so this is equal to 1 by t square और 1 by से कह सकते हो सेकंड का स्क्वायर ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ बोलो स्टूडेंट्स मास नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ m0 m0 l0 t t -2 बिल्कुल सही 100% राइट ब्यूटीफुल सो एंगुलर एक्सेलरेशन दे यूनिट्स की होए m0 l0 t -2 एंगुलर वेलोसिटी यूनिट्स की होए m0 l0 बोलो बच्चों m0 l0 t -1 ओके दैट्स गुड इस तो बाद आप गल कर दे रेनॉल्ड्स नंबर ठीक है ये भी एक नंबर है कोई यूनिट नहीं m0 l0 t0 ओके जी उस तो बाद आ गए ऑलराइट यस व्हाट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स refractive index ठीक what is refractive index देखो एक मान लो एयर तो ग्लास स्लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦਾਈ ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ ਨੇ ਆਪਣੀ डायरेक्शन ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਨਾਰਮਲ ਇਹ बेंड कर गई दोबारा जो उधरों निकली दोबारा उन्हें सेम अपना रास्ता ले लिया व्हाई बिकॉज लाइट वुड लाइक टू ट्रैवल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू maximize its velocity so shortest possible time will be if this distance is decreased right so refractive index mu the units की होंगे units students can you tell anyone so it will be velocity divided by velocity so that will be tell me m0 l0 t0 velocity is lt -1 divided by again lt -1 that is equal to this thing okay what about potential energy or
काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी सेम यूनिट्स जाउल ने जो वर्क द यूनिट्स होंगे वर्क द यूनिट्स की है फोर्स इनटू डिस्टेंस फोर्स द यूनिट्स एम एल टी -2 इनटू डिस्टेंस एल सो दैट इज इक्वल टू एम एल टू टी -2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾउल ਦੇ यूनिट्स नहीं ओके जी दैट्स गुड कुछ और स्टूडेंट्स व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स moment of force yes this is equal to force into yes force into distance so एक ही होएगा force देखिए m l t -2 into distance is l is equal to m l 2 t -2 okay students I wish you all the best so this is our first lecture in physical world and measurement okay so मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ठीक है और आप ये भी डिस्कस करांगे लाइक होर किहड़े सिस्टम होंदे ने मेजरमेंट्स दे लाइक पहला एक सी CGS सिस्टम एक हैगा साडे को FPS सिस्टम ठीक है और एक है MKS सिस्टम एंड नाउ MKS दे काफ़ी सिनोनिम वी हैव SI सिस्टम आप ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ फिजिक्स सारी दे विच मैथ्स दे विच और बहुत इंपॉर्टेंस ਇਹਦੀ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆਏਗੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਸੋ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਲਰਨ CBSE ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਲਰਨ CBSE my name is Omkar Singh and do share with your friends. So this is the first lecture is over. Tomorrow we'll have second lecture, unit conversion from one system to other. और फिर कोई भी formula वा वो दी correctness नो वो करना भी कितना correct है formula. जे ए ठीक हो गया फिर असी third lecture discuss करांगे कि किसी formula नो derive कितना करना है मतलब मान लो कोई formula ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ parameters ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ dimensions ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ. Alright students, wish you all the best. Have a nice time.